پارس یونین کے بانی رکن جناب میاں شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ آغا افتخار صاحب، ایک دفعہ کھڑے ہو کر اپنی بھرپور تعلیموں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیزو، ایک پودا جس کا بیج لگایا اور اس کی کانٹیں نکلی، چھوٹا سا پودا تھا. جب سمپاس کا شروع ہوا، آج اس کو تناور درخت دیکھ کر میں محظوظ ہوں، میں خوش ہوں. لیکن یہ بیج لگاتے ہوئے جب میرے ذہن میں جو توقع تھی کہ ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں، ابھی اس لیول پہ سمپاس نہیں آئی. میں 41 سال سے ریٹائرڈ ہوں، لیکن سمپاس سے میں ہر وقت متعلق ہوں. مجھے احساس ہے کہ سمپاس کس نہج پہ چل رہی ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے. آپ ہمارے عزیز ہیں، بچے ہیں، میرے ساتھ والے رخصت ہو گئے. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے بہت ہی اچھے مخلص عزیز میرے جونیئر راجہ امین صاحب فوت ہو گئے، اور سب مل کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم اغفر لی حینا میتا صغیرا کبیرا اللہم انی اعطاک من خیر الاسلام من توفیت فتوفا بالایمان صلی اللہ تعالی وسلم محمد علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ان کو کرم کرے، اور ہمارے جو ساتھی رخصت ہو گئے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے. جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک صحت کامل اور عاجلہ عطا فرمائے. بچوں کی باتیں سنی ہیں. میں جب مشہور صاحب بات کر رہے تھے چوہدری محمد دین کے اختلافات اور سارے معاملات کو میں نے باریکی سے دیکھا ہے. آغا مختار کو جو آج کل بیمار ہیں، صاحب فراش ہیں، راجہ امین فوت ہو چکے ہیں، میں ہر وقت تک ان سے منسلک رہا ہوں. اجرہاں جاتے ہوئے پوچھا کرتا تھا کہ راجہ صاحب اجازت سے ہے کہ آپ کے شہر سے گزر سکتا ہوں، تو بڑے کمال سے وہ ہمارے ساتھ میرے ساتھ معاملہ محبت کرتے تھے. میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ ایسا کریں، ان سارے عزیزوں کو میرے پاس بلیانہ میں لائیں، میرے گھر میں لائیں، تاکہ ہم 2-3 دن بیٹھ کے ہم اکٹھے ایک میٹنگ کریں. میں ان کو جو میں چاہتا تھا میں ان کو ساری باتیں بتاؤں، کیونکہ اصل میں آپ جتنے ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت کم لوگ ہیں جن کو ایس ایم جی اے کی تاریخ اور سمپاس کی پوری تاریخ معلوم ہے. ہر آدمی نے کہا یہ وہ میں نے کیا، وہ میں نے کیا، سب اللہ نے کیا ہے. اللہ جب کام لینا چاہتا ہے تو وہ کام لے لیتا ہے، ذریعہ بنا دیتا ہے. ایک ہمارے جیسے ناتوان تنکے سے بھی کام لے لیتا ہے. اس وقت بڑی سبارنیشن تھی. ایک ٹی آئی آتے ہوئے ہمارے نظامی صاحب کو میں نے کھڑے ہوئے دیکھا ہے کہ ان کی ضرورت نہیں تھی کہ ٹی آئی کے سامنے بیٹھ جاتے اپنی کرسی پہ، لیکن ہم نے ان کے سامنے، ہمارے دوستوں نے، آغا استاد کے شاہد ہیں، شیخ اشرف اس کے شاہد ہیں، راجہ امین تو فوت ہو گئے ہیں، کہ جنیجو صاحب کے دفتر سے اٹھ کے آ گئے کہ نہیں اگر آپ ٹائم نہیں ہے تو ہمیں بلایا کیوں، جب ٹائم ہوگا پھر ہم آئیں گے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ناتوان نے کی. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اخلاص پیدا کریں، جذبہ پیدا کریں،
यूनिटी पैदा करें, इसमें आपके लिए खैर है। रेलवे इंतज़ामिया जो है ये तो ट्रांसपोर्ट करना जानती है। हमने देखना है कि इनकी वजह से जो नुकसान रेलवे को हो रहा है वो हमने कैसे इनको दूर करना है। अपनी सिफारिशात पेश करें, रेलवे इंतज़ामिया के लिए मिनिस्ट्री को अपनी सिफारिशात पेश करें। सर आए तशरीफ लाए सर, सर तशरीफ लाए सर। इज़्ज़त माब जनाब जवेद इकबाल साहब, चौधरी अब्दुल गफ़ार साहब, चौधरी सईद गुजर साहब और मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम बड़े भाई मंजूर अली मशहूरी साहब, आगा इफ्तिखार साहब, बाकी जितने दोस्त स्टेज पर तशरीफ़ रखते हैं, हाल में बैठे हुए हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बड़ा सलाम। मैं लाहौर डिवीज़न का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ और बहुत खुश हूँ कि लाहौर डिवीज़न जो संपार्स यूनियन की एक डिवीज़न है, उसने अपनी कारकर्दगी, अपनी मेहनत, अपनी जद्दोजहद को आज इस स्टेज पर साबित किया है कि हम सब स्टेशन मास्टर, संपार्स यूनियन के मेंबर यहाँ अपने ड्यूटियों को छोड़कर यहाँ मौजूद हैं। अजीज़ दोस्तों और साथियों, मैं थोड़ा सा गुजरे हुए हालात पर तबसरा करना चाहता हूँ। पाकिस्तान रेलवे में जितनी भी यूनियंस बनी, मुझे यहाँ तक मेरा नॉलेज है, इल्म है, उसमें कोई भी ऐसी यूनियंस किसी कैटेगरी की अपग्रेडेशन के लिए आज तक कामयाब नहीं हो सकी। ये एसएमजीए जो पहले यूनाइटेड यूनियन की एक अलाई इत्तेहादी थी और जिसके सदर सरबरा चौधरी उमरदीन साहब थे, इस एसएमजीए ने वहाँ इतनी जद्दोजहद की कि आप जिन स्टेशनों पर आज बैठे हुए हैं, इनकी अपग्रेडेशन बसीते एसएमजीए यूनाइटेड यूनियन के प्लेटफॉर्म से 80 की दहाई में मुमकिन हुई। और फिर जब एनआईआरसी ने इस बात पर यह कदगन लगा दी कि एनआईआरसी के साथ कोई एसोसिएशन कंटिन्यू नहीं कर सकती, तो फिर ये यूनियन जो है इसने फैसला किया कि हम पहले स्टेशन मास्टरों, कैबिन मैनों, गेट मैनों, गैंग मैनों की पहले ही जिम्मेदारी निभाते हैं, तो लिहाजा आज हम इस एसोसिएशन को, एसएमजीए को स्टेशन मास्टरों की यूनियन बनाते हैं और जिसका उन्होंने इसको नियर अबाउट 78 के करीब इसको संपार्स यूनियन बना दिया, स्टेशन मास्टर ग्रुप एंड ऑल पाकिस्तान रेलवे स्टाफ यूनियन। और इसी यूनियन ने 84 के करीब पहली अपग्रेडेशन जो थी वो स्टेशन मास्टरों की इस यूनियन के प्लेटफॉर्म से हुई। मुझे याद है कि मैं 8वें स्केल में स्टेशन मास्टर एएसएम ग्रेड 1 था और जब इसको अपग्रेड किया गया तो 9वां स्केल हो गया। और फिर उसके बाद इसी यूनियन ने 2006 में जब अनामली पैदा हुई और मंजूर अली मशहूरी साहब इस यूनियन के बानियों में से शामिल है, ये उस वक्त उस सारे काफिले का सीनियर मोस्ट हरावल दस्ता थे और इस यूनियन ने, आप सब ने इसके फोरम से एक बहुत ज़बरदस्त जंग लड़ी। वो बड़ा कठिन दौर था, वो माशाल्लाह का जैसा दौर था और रेलवे में मिलिट्री बैठी हुई थी,
लेकिन आप लोगों ने मैं जनाब हमारे बहुत ही प्यारे साथी जो अब तशरीफ़ ले आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और हमें रौनक बख्शें। जनाब अकरम मुअज़्ज़म साहब। तो यही यूनियन कैबिनमानों के लिए, पॉइंट्समैन के लिए, स्टेशन मास्टरों के लिए 2000 अप्रैल 2007 में अपग्रेड रहेंगे, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं, कोई किसी तंजीम का परमानेंट रुकन नहीं रहता, परमानेंट ओहदेदार नहीं रहता। तंजीम आप लोगों की है। आज अगर हम हैं तो कल हम चले जाएंगे और जाने के लिए तैयार भी हैं। मैं बताता हूं कि मैं कम से कम इस चीज़ पर, फलसफे पर कायम हूं कि जब आने का वक्त है तो फिर जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो अजीज दोस्तों और साथियों, ये बात थी। आज जब ये सारा हुआ, मैं लाहौर डिवीज़न को फिर एक दफ़ा इस बात की खराज तहसीन पेश करता हूँ कि लाहौर डिवीज़न ने पूरे मरकज़ को दावत दी और मुझे दावत दी और मैं बहसीत जनरल सेक्रेटरी इधर इस दावत पर, बेशक मेरी डिवीज़न है लेकिन मैं यहाँ मौजूद और आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बाकी सारी चीज़ें खुली किताब की तरह आपके सामने है, किसी बात का कोई दावा नहीं है। लेकिन एक बात का दावा है कि यूनियन के अंदर यूनिटी रहनी चाहिए और अपग्रेडेशन होनी चाहिए। तीसरा कोई एजेंडे पर कोई चीज़ नहीं है। उसके लिए चाहे जहाँ मर्जी जाना पड़े, रेलवे इंतज़ामिया जो है उसने हमारे केस को, मंजूर अली मशहूरी साहब ही इस केस के टाइटल हैं, इसको फॉरवर्ड किया, इसके लिए बजट दिया और फाइनेंस को लिखा कि हम बजट देने के लिए तैयार हैं। रेलवे से आज भी मैं ये बात कहता हूं कि हमारा रेलवे से कोई एहतजाज नहीं है, लेकिन रेलवे के जरिए से हमारा एहतजाज है कि रेलवे हमारे एहतजाज को, हमारे हक को फाइनेंस डिवीजन के साथ जंग करे, लड़ाई करे और उस अप्रूवल के लिए आगे बढ़े, क्योंकि हम इस हक से कतल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो लिहाजा अजीज दोस्तों साथियों, ये इसी तरह जब लाहौर डिवीज़न का हुआ है तो आगे डिवीज़नों में भी जलसे चलेंगे, ये कंटिन्यूटी रहेगी और संपार्श यूनियन के एक छतरी तरह हम सब मुतहद हैं, मुतहद रहेंगे। और कोई भी एक बात है, जब हम मिलकर किसी एक्शन पर जाएंगे तो कामयाबी का 100% इम्कान होगा। अगर एक शख्स भी बाजू नीचे करके खड़ा रहा तो उससे भी फर्क जरूर पड़ता है। लिहाजा सब मिलकर आगे बढ़े, बगैर किसी चीज को छोड़ते हुए मिलकर आगे बढ़े। संपार्श यूनियन आपके साथ है और आपकी अपग्रेडेशन के लिए हर जद्दोजहद की हमायत करती है और हमायत करती रहेगी और आपके साथ है और पूरा का पूरा पाकिस्तान स्टेशन मास्टरों का आपके साथ चलेगा। लाहौर डिवीज़न जिंदाबाद, लाहौर आगे बढ़े इंशाल्लाह। पूरा मरकज़, पूरी संपार्श इनके साथ है। बहुत शुक्रिया। वास्सलाम। मेरी संपार्श यूनियन के तमाम कारकुनों से गुजारिश है कि वो अपनी नशिस्तों से खड़े होकर तालियों की गूंज में संपार्श यूनियन की आन, संपार्श यूनियन की शान, नौजवान नस्ल के हर दिल अजीज़ लीडर जनाब मंजूर अली मशहूरी साहब का इस्तकबाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम आगा इफ्तिखार अली साहब, शुएबुल्लाह खान साहब, चौधरी अब्दुल गफ़ार साहब, इकबाल जावेद साहब, हमारे मेहमान दोस्त जनाब यूनुस भट्टी साहब और ख़ास तौर पे
دنیا میں جو ایک عظیم رشتے بنتے ہیں جو تاریخ میں لکھے جاتے ہیں، جو بھائیوں سے بھی شاید زیادہ، بھائی سے کوئی نہیں ہوتا زیادہ، لیکن اس اجتماعی جدوجہد میں میرے بھائیوں سے بھی زیادہ میرے محسن جناب چودھری محمد سعید گجر صاحب اور تمام میرے غیور ساتھیوں، السلام علیکم۔ دوستو، پروگرام کو ہم شارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کم الفاظ میں بغیر کسی کی غیبت کیے ہوئے، سچ بھی اگر ہم بولیں تو آج وہ بھی غیبت میں تصور ہوگا، کیونکہ ہم اس چیز پہ رات کو فیصلہ کیا تھا ہم نے کہ ہم نے بھائیوں کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے، یہ ہمارا عزم ہے۔ چند چیزیں جو پرانے ساتھی میرے بیٹھے ہیں، بہت اچھا وقت ہم نے گزارا ہے۔ دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں جو ہمارے نئی نسل ہے، جو دوست ہیں، ان کو صحیح نقشہ دینا چاہیے، ان کو علم ہو کہ آج جو ہم یہاں کھڑے ہیں وہ کیسے کھڑے ہیں۔ اور یہ موقع ہمیں فراہم کیا لاہور ڈویژن کے ان شاہینوں نے، میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بچا کے نیوٹرل رہتے ہوئے یہ اتنے ہیرے موتی جواہر شیر جوان اکٹھے کیے ہیں، میں آپ لوگوں کو سلام کرتا ہوں۔ دوستو، دو چیزیں آتی ہیں، جدوجہد۔ اب آپ تاریخ دیکھ لیں، دنیا کی پوری، جب سے حضرت آدم سے لے کے آئے، جہاں سے ہم نے جمع کی ہے تاریخ، تو زندہ وہی رہتے ہیں جو جدوجہد کرتے ہیں، خواہ وہ مذہبی ہو، خواہ وہ سیاسی ہو، لیکن اس کا مقصد کیا ہے کہ انسان ذات کی بھلائی، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں لوگ آئے، مر گئے، پتہ ہی نہیں ہے، باپ کا پتہ ہے، دادا کا پتہ ہے، زیادہ سے زیادہ پردادا کا پتہ ہے، آگے کا ہمیں ہی پتہ نہیں ہے۔ لیکن جو آج سے 1400 سال پہلے شہید ہوئے، یا دنیا کی تاریخ میں جتنے عظیم لوگ تھے، وہ آج بھی کتابوں میں بھی محفوظ ہے، اور آپ ان ریفرنس دے کے آپ اپنی جدوجہد کو آگے لے جاتے ہو، جس میں شکاگو کا ذکر کرنا بھی لازمی ہے، جو آج انہوں نے ہمیں یہ حق دیا اور آج آپ لوگ اکٹھے بیٹھے ہو۔ اگر آپ یہی کہیں کہ قسمت پہ چھوڑ دیتے ہیں، ایسے قسمت نہیں تبدیل ہوتی جب تک آپ لوگ نہیں اٹھو گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس میں سے ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جن میں قائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، خدا داد بھی، اور ان کا نظریہ، ان کی انسانیت، ان کی انسان دوستی اور عظیم آدرش، وہ لوگ بہت آگے جاتے ہیں، اپنی قوموں کو، اپنے انسانوں کو، ان مساکین کو، غریبوں کو آگے لے کر وہ انقلاب کر کے ان کے حالات تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسی دوران دو نمبر بھی پیدا ہوتے ہیں جو ان کی جدوجہد کو ناکام کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک چیز اور آتی ہے، جدوجہد تو کی آپ نے، اگر آپ ثابت قدم نہ رہے، غور سے سنیں، تو آپ کی ساری جدوجہد ختم ہو جاتی ہے۔ کئی تاریخ میں لکھے ہوئے، کئی لوگ مارے گئے، کئی شہید ہو گئے، تاریخیں ختم ہو گئی، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور سازشیں چلتی ہے۔ سب سے بڑی چیز کہ اس سے بچا جائے۔ مجھے آج، میں اس کو زیادہ نہیں کرنا چاہتا، مجھے آج وہ وقت یاد آ رہا ہے، یہی وہی جگہ ہے جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، یہی برڈ انسٹیٹیوٹ ہے۔ پہلا اجلاس ہمارا یہاں ہوا تھا، وہ فوٹو بھی ابھی میرے پاس پڑے ہیں، جب جاوید اقبال اور یہ میرے ساتھی اور بڑے خوبصورت نوجوان ہیں، میں بھی سب سے عمر میں کم تھا۔ یہ آپ کی تنظیم بنی کیسے؟ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، ہمارے محسن بیٹھے ہیں، ایس ایم جی ہوا کرتی تھی،
यूनाइटेड यूनियन CBA थी, हमें तोहफे में वो मिली, तोहफे में क्या जहेज़ में मिली, और एक फ्रेम दोबारा मिली। मैं उसके इस पे नहीं जाता, आज तक वो चल रही है। जब हम भर्ती हुए थे, नए नए थे, हम इलेक्शन लड़े थे, आज तक वही CBA है, जबकि इदारों में हर 2 साल बाद होनी चाहिए। और हमारे इदारे ने कभी ट्रेड यूनियन को तस्लीम ही नहीं किया। सबसे ज़्यादा अगर पाकिस्तान में कोई कम CBA है तो वो रेलवे की है, जिसकी वजह से कई मसाइल पैदा हुए हमारे पास। उस वक्त यूनाइटेड यूनियन थी, रेफरेंडम हुआ, स्टेशन मास्टर जो है वो स्ट्राइकिंग पावर था। यूनाइटेड यूनियन की मजबूरी थी कि वो स्टेशन मास्टर को अपने साथ रखे, उनके कंधे पे बंदूक चलाए और आगे चले। हमारे बड़े बड़े नाम यूनाइटेड यूनियन में थे। बुरी शिकस्त हुई, बहुत ज़्यादा बुरी शिकस्त हुई। और मैं आज ये भी बता दूं कि वो भी साजिश का शिकार हुई थी। उस वक्त भी यही, जो आज हम गलतियां करने जा रहे हैं, उस वक्त भी यही हुआ था। जब वो ख़त्म हुई तो स्टेशन मास्टरों पे डंडा चलना शुरू हो गया। और संपास की तारीख पे आओ तो ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, एसोसिएशन थी, एसोसिएशनें ख़त्म कर दी गई, तो इन्हीं बुजुर्गों ने वो रजिस्ट्रेशन संपार्स की करा ली, सारी कैटेगरी इकट्ठे कर ली, हमारी संपार्स बन गई। लेकिन रही है संघीय। उसका आगाज़ जब ये रेफरेंडम में यूनाइटेड यूनियन को शिकस्त हुई है तो ये मजबूर हुए कि स्टेशन मास्टर का अब वकार नहीं रहा, अब क्रिटिसाइज भी हो रहा है और विक्टिमाइज भी हो रहा है। तो जद्दोजहद का आगाज़ किया गया। किसने किया? हमारे अजीम लीडर। हम लोग खुशामद परस्त हैं, हम लोग बुतों की पूजा करने वाले लोग हैं ट्रेड यूनियनों में और सियासत में, मुर्दा परस्त हैं। जो बगैर पानी तो ये जरा दस दो तो जाना है तो वो वास्ते CO साहब को कहो जी कोयटा की गड्डी चला देना, हफ्ते च 1 दिन उन्होंने पानी मिल जाएगा। और छप्पड़ा तो पानी पी लेना, वो भी स्टेशन मास्टर नहीं यार, उन्होंने को ख्याल करो। बाकी अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, एक अहम चीज़ मैं आपको गोशगुजार करना चाहता हूँ। माशाल्लाह इस आज के जो जद्दोजहद का ऐलान हो रहा है या जो भाई इकट्ठे हुए हैं, उसका सेहरा लाहौर डिवीज़न को जाता है। तो लाहौर डिवीज़न को हम क्या दे रहे हैं? दोस्तों की ख्वाहिश है, लाहौर डिवीज़न के मेरे साथियों की, कि हम अपग्रेडेशन केस को ऑन करना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी बात। पहले हम 2 थे और मेरे साथी थे, जिसमें पेशावर डिवीज़न का सबसे ज़्यादा अहम किरदार है असमतुल्लाह साहब जैसे बंदे, या मेरे ये नौजवान हैं, मुल्तान है, सारी डिवीज़नों से साथी थे। हमने अपने हाल के हर जितना कानूनी हमारी कुव्वत है उसके मुताबिक काम किया है, एंड तक ले आए हैं। इन दोस्तों की ख्वाहिश है कि हम इसको ऑन करें। तो ये एक बड़ी अहम और खुशी की बात है। यूँ समझिए कि अपग्रेडेशन केस मैं लाहौर डिवीज़न को गिफ्ट करता हूँ। साथ ही ये गुजारिश करता हूँ कि वो लोग इस जद्दोजहद में शरीक हो जाएं। दोनों तरफ से चलेगी, कानूनी भी और जद्दोजहद भी। इतना सिर्फ गुजारिश करूँगा कि वो जनाब चौधरी सईद गुजर साहब, गफ़ार साहब और मेरे साथ मुशावरत से इस केस को आगे लेके चलें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, हमें खुशी हो, और इंशाअल्लाह ये इसी को भी मंजिल तक पहुँचाएँ। थैंक यू। जी, पेशावर डिवीज़न से आए हुए हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब मुमताज़ बंगई साहब से दरख्वास्त है कि वो ज़रा स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ।
एक मिनट, सारे दोस्तों से गुजारिश है कि अपग्रेडेशन कोरोना की वजह से हमारा केस नहीं लग रहा। फ़िलहाल छुट्टियां हैं, इंशाल्लाह सितंबर में कोशिश करेंगे केस लग जाएगा। तो जितने दोस्त वहाँ मेरे साथ आएंगे हमें खुशी होगी। लाहौर डिवीज़न तो पहले ही हमारे साथ है, बाकी जितने लोग आएंगे हमें खुशी होगी। वहाँ जाएंगे, कुछ इस तरह का माहौल बनेगा, किसी को पता होगा कि ये कौन लोग हैं। सितंबर में इंशाल्लाह जब डेट लगेगी सबको बता दिया जाएगा। मेहरबानी है साहब। अब मैं दावत दूंगा आज की इस पुरवकार तकरीब की पुररौनक शख्सियत मेरे और आप सब कारकुनों के कायद जनाब इकबाल जावेद साहब, और मेरी तमाम कारकुनान से गुजारिश है कि वो अपनी नशिस्तों से खड़े होकर भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें जनाब इकबाल जावेद साहब, जो आज इस तकरीब के इख्तिताम में लाहौर डिवीज़न और जितनी भी तमाम डिवीज़न्स यहाँ पर मौजूद हैं एक रोड मैप देंगे और आज की इस तकरीब का लाएअमल पेश करेंगे इंशाअल्लाह। नहमदहु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। निहायत काबिल एहतराम मियाँ शोएबुल्लाह खान साहब, आगा इफ्तिखार साहब, मंजूर मशहूरी साहब और दीगर कोयटा डिवीज़न के साथी, लाहौर डिवीज़न के यंगर्स, एल्डर्स, उनको मैं दोनों हाथों से सैल्यूट पेश करता हूँ। साथियों, कन्वेंशन का इनेकाद यहाँ पे करना, ये मैंने ही NIRC में तारीख के दौरान लाहौर डिवीज़न का जज्बा भांपते हुए लाहौर वालों को टारगेट दिया था कि आप एक वर्कर कन्वेंशन जिसको आप लीड करें। तो अल्लाह के फजल व करम से इन्होंने खलूस नीयत से उस पर काम किया, न सिर्फ लाहौर में बल्कि PR में, कराची हो, कोयटा हो, सक्कर हो, मुल्तान हो, पेशावर हो, रावलपिंडी हो, इन्होंने सबको जगाया। और उस सिलसिले की जगाने की पहली कड़ी 26 जुलाई को लाहौर में इन्होंने एक जलसा किया, रावलपिंडी में। तो मैंने उस वक्त भी तमाम साथियों से यही गुजारिश की थी रावलपिंडी में कि आप आएँ, आगे बढ़ें, इस कौम को रोड मैप दें। आप रावलपिंडी में रोड मैप दें, मैं लाहौर में इसको इम्प्लीमेंट कराऊंगा। मगर बदकिस्मती से मीडिया के बार बार पूछने के बावजूद भी रोड मैप न मिला। मेरा ख्याल है कि उन्होंने 2 अगस्त का हमारा कन्वेंशन भांप लिया था और वो हमसे चाह रहे थे कि हम बिरादरी को रोड मैप दें। हम रोड मैप भी देंगे, उस पर अमल भी करेंगे, और जो इख्तलाफी बातें करते हैं साथी, मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं सबका एहतराम करता हूँ, और इस रोड मैप को पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे। साथियों, संपार्स यूनियन के जो काम हैं अपनी दीगर कैटेगरीज़ के लिए, जिसमें मेरा पॉइंट्समैन, कैबिन मैन, शंटिंग पोर्टर, शंटिंग मास्टर, ये इनके स्केल और इनका वेसाइड, ये भी संपार्स की जद्दोजहद का मरहून मिन्नत है। और उसके बाद हमने जो 2015 में तारीखी जद्दोजहद की, जब 3 गार्ड अपग्रेड हुए लाहौर के, तो उस वक्त का रेलवे मिनिस्टर ख्वाजा साद रफ़ीक को मैंने SMS किया कि अगर आपने इन गार्डों का अपग्रेड करना है, हमारे दुश्मन नहीं है, करें, पर हम चूँकि इंचार्ज कैटेगरी हैं
ये राइट हमारा बनता है। 72 घंटे के अंदर स्टेशन मास्टरों को अपग्रेड करो, वरना कराची से लेकर खैबर तक पहिया जाम करेंगे। उसी वक्त चूँकि जावेद अनवर बुबक साहब इस्लामाबाद में थे, हमें 6 बजे थ्रू आफ्ताब साहब SRP थे उस टाइम, हमें कहा जी 6 बजे आपने मीटिंग करनी है कमेटी रूम DS ऑफिस रावलपिंडी। तो जो मुझसे हो सका, जो करीब 30 स्टेशन मास्टर थे 25-26, जिसमें राजा साहब भी थे, मज़र जंजुआ भी थे और गफूर खान खैल को मैंने पेशावर से बुलाया। तो वहाँ पर राजी साहब ने कहा कि आप अपने मामलात को कंक्लूड करें ताकि जो हम कर सकते हैं वो करें। मैंने कहा सर इसमें चूँकि 7 इकाइयाँ हमारी 7 डिवीज़न हैं, अगर आप सरकारी तौर पर हमें कॉल करते हैं तो हम लाहौर आकर आपसे बात करेंगे। और याद रखें वो आपका 72 घंटे का नोटिस, वो 72 घंटे का जो हमने इनको नोटिस दिया था, उसकी वजह से 7 डिवीज़नों से 3-3 आदमियों को पासेस देकर बुलाया गया और 3 दिन हमारे वहाँ मुज़ाकरात हुए। और उस मुज़ाकरात में उस वक्त का COPS वॉकआउट कर रहा था कि स्टेशन मास्टर हमारे गर्दन पे बंदूक रखकर हमसे मुतालबात मनवाते, मैं वॉकआउट करता हूँ। तो मैंने कहा सर नहीं, वॉकआउट हमारा प्रोगेटिव है, हमारा राइट है, हम वॉकआउट करते हैं, आप बैठे आप संभालें। तो उस टाइम के डायरेक्टर लीगल जो कि रिटायर्ड सेशन जज था, उसने COPS को रोका और हमारी मिन्नत की, नहीं जी मिनिस्टर साहब वाच कर रहे हैं, आपका मुआहदा होगा तो हम आप उसने देंगे। वो मुआहदा हुआ और साथ साथ मशहूर साहब का केस, सैयद गुजर साहब का केस भी चलता रहा। वो क्यों ना हो सका, लंबी दास्तान है, फिर कभी सही। मगर आज इस पंडाल की वसातत से हम अपग्रेडेशन के हसूल के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। नहीं करने ये मैं एजेंसी के आदमी अगर बैठे हैं तो कान खोल कर सुन लें, हम आईनी कानूनी हक इस्तेमाल करना जानते हैं और हम करेंगे। 20 दिन का टाइम है इंतज़ामिया के पास और मैं तमाम डिवीज़नों से यहाँ आए हुए हैं, उनसे मैं यहाँ फिर इकरार लेता हूँ कि आप इस पे डिटरमिन हैं, आप साथ देते हैं, हाथ खड़ा करके जवाब देते हैं। मेरे दोस्त जिनकी ख़ानदानी कुर्बानियाँ मैं तो कहता हूँ उस तंजीम के लिए हैं, जिसमें अकरम मौज़म है, असलम साहब हैं और लाहौर डिवीज़न के यंगर एहसन सलीम गुजर साहब, नवीद अशरफ साहब और दीगर साथी, इनकी ग्रां कदर खिदमात है संपार्स के लिए। यारो ये हमें जो यहाँ पर इकट्ठा किया है, इनकी एक पहली कोशिश नहीं है, इनका बेहतरीन होटलों में एम्बेसडर हो गया, दूसरे होटलों में हो गया, बेहतरीन इन्होंने प्रोग्राम दिए हैं और अपनी जेब से ज़्यादातर अखराजात किए हैं। यार एक तनख्वाह में बंदा कितना कुछ कर सकता है। दूसरा, मैं खराज तहसीन पेश न करूं तो ज़्यादती होगी बशीरी साहब को, सैयद गुजर साहब को और जो की पटिशनर हैं, उन्होंने अपने जेब से माली नुकसान उठाकर कैटेगरी के लिए काम किया है। और मैं मशहूरी साहब के इस बयान का भी खैर मकदम करता हूँ कि कोर्ट केस वो लाहौर डिवीज़न के हवाले कर रहे हैं, हम इसको वेलकम करते हैं। और लाहौर डिवीज़न के साथ मैं तमाम डिवीज़नों से रिक्वेस्ट करूँगा कि लाहौर डिवीज़न के साथ भरपूर तावन किया जाए। हजूम देख कर रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम, जो चल पड़े तो इरादा नहीं बदलते हम, हज़ार ज़ेरे कदम रास्ता हो खारों का, जो चल पड़े तो रास्ता नहीं बदलते हम। इंशाअल्लाह ताला कैटेगरी को
जब अपग्रेडेशन मिल जाएगी तो उसके बाद बेशुमार लामतनाही सिलसिला है मसाइल का, वो भी हम रखेंगे। चूँकि यहाँ पर 1 पॉइंट एजेंडा था, उस 1 पॉइंट एजेंडे को देखते हुए हमने अपग्रेडेशन के लिए डेडलाइन दे दी है। मेरे वो साथी जिनका हमारे साथ थोड़ा बहुत इख्तलाफ है, इतना बड़ा नहीं है, उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि इसको करें कैटेगरी के लिए, वरना तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। अस्सलाम। अब सब दोस्त यहाँ से अपने अकाबरीन के साथ हेडक्वार्टर तक जाएंगे और वहाँ अपना एहतजाज पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करा के वापस यहाँ पे आप तशरीफ़ लाएंगे और यहाँ आपका बेहतरीन खाने का इंतज़ाम भी है, तो हेडक्वार्टर की तरफ चलेंगे।